You are watching Shagid TV. Stay tuned and keep watching. میری طرف سے آپ سب کو سلام. میرا نام ماسٹر شمشیر پرویز ہے اور میں لیاری ٹاؤن علاقے کا انچارج ہوں. آج ہمارے لیے بڑی شادمانی خوشی اور شادمانی کی بات ہے کہ ہم مقدسہ مریم کی ایک روزہ سالانہ دوسری زیارت کے موقع پر سب اکٹھے ہوئے ہیں اور آج شام کو یہ یہاں پر ہمارے پروگرام ہے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہماری بہنیں لشکر مریم کی خواتین، آلٹر سرونٹ کے بچے اور یوتھ گروپ کے نوجوان جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں اور یہ اسی طرح جوش اور ولولے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تاکہ شام کی ہماری عبادت جو ہے وہ پرمعنی ہو اور ہم مقدسہ مریم سے سفارشات کرتے رہیں. اور آپ ان کے لیے دعا کریں کہ ہم اسی طرح لگن اور پیار اور ایک دل ہو کر ہمیشہ اپنی عبادات کو پرمعنی بنانے کے لیے باہر بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ باہر بھی تیاریاں زور و جوش سے جو ہے وہ ہو رہی ہیں. اور انیس بھائی ہمیشہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہماری عبادات کو اچھا بنانے کے لیے ہماری انیس بھائی ہیں. میں نے جن کا ذکر کیا کہ ہر عبادت میں ہمارا جو بھی ڈیکوریشن کا کام ہوتا ہے، عبادت کے لیے دریاں، چٹائیاں اور پینا فلیکس جو بھی انتظام ہوتا ہے ہم انہیں بلاتے ہیں. تو یہ انیس بھائی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسا لگتا ہے ہمارے ساتھ کام کر کے جب بھی ہماری عبادت ہوتی ہیں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب یہ بلاتے ہیں اور یہاں جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس کے لیے یہ مجھے خدمت کا موقع دیتے ہیں اور تمام ٹیم کو کام کرتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ جو بھی انسان یہاں کام کر رہا ہے دل سے کام کرے، اچھا کام کرے اور آپس میں مل جل کر. اور یہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ یہ مجھے موقع دیتے ہیں اور مجھے بہت مزہ آتا ہے ان کا کام کرنے کے اندر، جس پر ہم جو ہے وہ آج پاک ماس کی اقدس قربانی خداوند کی حضور گزرانیں گے. اور یہ ہماری سالانہ دوسری زیارت ہے. ہم اسے پرجوش طریقے سے منانے کے لیے تیار ہیں اور اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے لیے دعا کریں تاکہ ہم جو ہے وہ اس کے لیے تیار رہیں. اور یہ پہاڑی ہے، یہ بڑی لگن کے ساتھ بچوں نے رات کو تیار کی ہے اور ابھی اس میں اسٹیچو جو ہے وہ رکھا جائے گا تاکہ ہم شام کے لیے بھی اس کی تیاری کر سکیں. تو یہ مقدسہ مریم کی پہاڑی ہے، اس پر جو ہے وہ ہم شام کو زیارت مقدسہ مریم کریں گے. اور گزارش ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں، جو آنے کی خواہش رکھتے ہیں، آپ خود بھی آئیں، اپنے دوستوں کو لائیں، گھر والوں کو لائیں اور پرجوش طریقے سے اس عبادت کا حصہ بنیں. تاکہ اس کے ساتھ ایک اور بات کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کلام مقدس کے مطابق مقدسہ مریم کے منہ سے ہی یہ الفاظ روح القدس نے نکلوائے کہ ہر زمانہ کے لوگ اسے مبارک کہیں گے، ہر ایک جان جو ہے اسے مبارک کہے گی، ہر ایک قوم اسے مبارک کہے گی. تو آج ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہم اپنی ماں مقدسہ مریم کو ایک ساتھ مل کر نہ کسی تفرقے، نہ کسی نفرت اور نہ ہی کسی ایسی بات کہ مقدسہ مریم کے بارے میں نفرت پیدا کرنے کی ہو، ہم سب مل کر اس ماں کی عزت کرتے ہیں. مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں، آج ہم لیاری ٹاؤن میں مقدسہ ماں مریم کی زیارت منانے کو ہیں اور آج ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ مقدسہ ماں کی عقیدت میں جلوس نکالیں اور چرچ میں لے کر جائیں. اور اس کے لیے آج لیاری ٹاؤن کی تمام کلیسیا جو ہے ہمارے ہمراہ ہے، تو ہم جلوس کے لیے تمام ریڈی ہیں. تھینک یو. جگ پہ تمام رانی اسمانہ دیے
ऊंचे जगते तमाम रानी आसमाना दिए हो। उसने पैंतीस परात उसके हाथ में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया। बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से झूठा, आसमान पर चढ़ गया। खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत की आने वाला है। मैं मान रखती हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक कलीसिया मुकद्दसों की शराफत, गुनाहों की माफी, जिस्म के लूटने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। कलमा की वालिदा मेरी अर्ज़ों को हकीर ना जा, मगर अपने रहम से मेरी दुआ सुन और कबूल कर। आमीन। इकट्ठे हुए क्या कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात के बाद जिस अजीम हस्ती को सबसे ज़्यादा इज्जत और एहतराम की निगाह से देखती है वो कोई और नहीं बल्कि मुकद्दसा मरियम की ज़ात, मुकद्दसा मरियम का नाम, मकाम और किरदार ना सिर्फ
तारीख में बल्कि तारीख में हैरान कुन तौर पर बहुत ही बुलंद आया और कद आवत शख्सियत के तौर पर जाना जाता था। और मुकद्दसा मरियम का वजूद ही खुदा का रहम है। वो सादिक और ईमानदार और ईमान ही के साथ वो हाँ कहती है। अपनी वफादारी और हाँ से हमारी निजात और माफ़ी का वसीला के लिए अपने आप को पेश करती है कि वो निजात दहिंदा की माँ है। खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। आलम मालक खुदा को जलाल और ज़मीन पर नेक नियत के लिए सलाम। ऐ खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह खुदा का मुतकब्बिर, तेरे अजीम जलाल के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तुझे मुबारक करते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरी प्रस्तुत करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदा खुदा आसमान खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तो जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है हम पर रहम कर। तो जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है हमारी दुआ कबूल कर। तो जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही अकेला कद्दूस है, तू ही अकेला खुदावंद है, तू ही अकेला यीशु मसीह रूहुल कुद्दस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला दर्जे पर है। आमीन। अज़ियत में शरीक माँ उसके पास खड़ी अपनी कलीसिया को यह अता कर के दुखियारी माँ के साथ ही मसीह के दुखों में शरीक होकर उसके जी उठने में भी शामिल, जो तेरे साथ रूहुल कुद्दस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। तशरीफ। मीका नबी की किताब उसका 5वां बाब और उसकी पहली 4 आयत। आज की पहली तिलावत मीका नबी की किताब से ली गई है और यहाँ यीशु मसीह की पेशन गोई और अज़मत को बयान किया गया कि वो अपने आप को लोगों के लिए कुर्बान करेगा और निजात का वसीला बनेगा। आए आज की पहली तिलावत सुनते हैं। खुदावंद फरमाता है, तू ए बैतलहम एफ्राता जो यहूदा के घरानों में कम तरीन है, तुझ ही से मेरे लिए वो निकलेगा जो इसराइल की गल्लाबानी करेगा और जिसका सदूर कदीम से बल्कि ज़माना साबिक से है। इसलिए वो उनको तर्क कर देगा जब तक वालिदा विलादत से फारिग ना हो। तब उसके बाकी भाई इसराइल के पास वापस आएंगे और वो जो यहूदा के घरानों में कम तरीन है, तुझ ही से मेरे लिए वो निकलेगा जो इसराइल की गल्लाबानी करेगा और जिसका सदूर कदीम से बल्कि ज़माना साबिक से है। इसलिए वो उसको तर्क कर देगा जब तक वालिदा विलादत से फारिग ना हो। तब उसके बाकी भाई इसराइल के पास वापस आएंगे और वो खड़ा होगा और खुदावंद की कुदरत से और खुदावंद अपने खुदा के नाम की अज़मत से उनकी गल्लाबानी करेगा। वो कायम रहेंगे क्योंकि वो उस वक्त इंतहाई ज़मीन तक बुज़ुर्ग होगा और वही सलामती होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद को शुक्रिया। मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश होती है। अल-कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसने अपनी
बंदी की बस थाली पर नजर की, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। अल कादिर मेरे लिए बड़े बड़े काम करता है, उसका नाम कदूस है। अल कादिर मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं, पुश्त दर पुश्त रहती है। वो अपने बाजू से जोर दिखाता है और मगरूर को बरगंदा करता है। अल कादिर ने बड़े बड़े काम किए हैं, वो कुदरत वालों को तख्त से गिरा देता है और पस्थालों को बुलंद करता है। वो भूखों को अच्छी चीजों से सैर करता है और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा देता है। अल कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, वो अपने बंदे इस्राएल की दस्तगीरी करता है, अपनी उस रहमत को याद करते हुए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। अल कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। उसका 11वां बाब और उसकी 19वीं आयत से 12वें बाब की पहली 6 आयत और फिर 10वीं आयत। आज की दूसरी तिलावत में यूहन्ना आरिफ आसमान में एक खातून का जिक्र करते हैं कि वो सूरज को ओढ़े हुए और जिसके पाँव के नीचे चाँद और सर पर 12 सितारों का ताज है। को ओढ़े हुए चाँद पर खड़ी थी। उस वक्त खुदा की हैकल आसमान में खुल गई और उसकी हैकल में उसके अहद का संदूक नजर आया और बिजलियाँ और आवाज़ें और गरजें पैदा हुई और जलजला आया और बड़े बड़े ओले पड़े। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नजर आया, यानी एक खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पाँव के नीचे चाँद और सर पर 12 सितारों का ताज था। वो हामला थी और तकलीफ में होकर दर्द ज़ह के सबब से चिल्लाती थी। तब एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया और देखो सुर्ख रंग का एक बड़ा अजदहा जिसके 7 सर और 10 सींग थे और 7 ताज उसके सरों पर थे। उसकी दुम ने आसमान के 3 सितारों को खींचकर जमीन पर गिरा दिया। फिर अजदहा उस खातून के आगे जिसका बच्चा पैदा होने को था जा खड़ा हुआ ताकि जब बच्चा पैदा हो उसे निगल जाए। और उसके यहाँ नरीना फर्जंद पैदा हुआ जो लोहे के आसा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा। और उसका फर्जंद खुदा के तख्त के पास तक उठा लिया गया और वो खातून बियाबान में भाग गई जहाँ खुदा ने उसके लिए जगह तैयार की थी ताकि वहाँ 1200 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। तब मैंने एक बड़ी आवाज़ आसमान में ये कहते हुए सुनी कि अब निजात और कुदरत हमारे खुदा की बादशाही
उसके मसीह का अख्तियार ज़ाहिर हुआ। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अब यीशु मसीह की पैदाइश यूँ हुई कि जब उसकी माँ मरियम यूसुफ के साथ ब्याही गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस से हामला पाई गई। तब उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे रुसवा करना नहीं चाहता था, इरादा किया कि उसे चुपके से छोड़ दे। वो इन बातों की सोच ही में था कि देखो, खुदावन के फरिश्ते ने उस पर ख्वाब में ज़ाहिर होकर कहा, ऐ यूसुफ, दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूह कुदस से है, और उससे बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से छुड़ाएगा। ये सब कुछ हुआ ताकि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो कि देखो, कवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। भाई और बहनों, आज हम मुक़द्दसा मरियम की अकीदत में जमा हुए हैं और मुक़द्दस महफ़िल फराहम की गई है पास्टर जी की तरफ से, और हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें मौका दिया कि आज हम मुक़द्दसा मरियम की अकीदत और इस शान में कुछ बातें सीख सकें, कुछ बातें जान सकें जो हमारे कैथलिक तालीम है और जो हमारे बाइबल के मुताबिक भी है और हमारे कलीसिया की रवायत भी है। अजीज़ भाई और बहनों, सबसे पहले हमने जो बात अपने जहन में बिठानी है वो ये है कि हम मुक़द्दसा मरियम की परस्तिश नहीं करते। हम मुक़द्दसा मरियम की परस्तिश नहीं करते, हम उसकी ताज़ीम करते हैं। परस्तिश करने में और ताज़ीम करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम अपने माँ बाप की परस्तिश नहीं करते, हम अपने माँ बाप की क्या करते हैं? ताज़ीम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। उसी तरह परस्तिश सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की, जितने भी मुक़द्दसीन हैं, मुक़द्दसा मरियम है, मुक़द्दस यूसुफ है, हम सब मिलकर उनकी शान में, उनकी अकीदत में ताज़ीम करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं। अबाए कलीसिया जो हैं, हमारे इब्तदाई जो स्कॉलर्स हैं, जो कलाम के माहिरीन हैं, जो हमें बताते हैं कि कलाम में ऐसे 3 पिलर्स हैं, 3 ऐसी बातें हैं कि जिनको अगर हम हटा दें बाइबल मुक़द्दस से तो बाइबल मुक़द्दस का वजूद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सारा दारो मदार कलाम मुक़द्दस का इन 3 बातों पर है। और वो 3 बातें क्या हैं? पुराने अहदनामे में वो है दुनिया का वजूद में आना, तख्लीक, क्योंकि जब दुनिया का वजूद आया तब ये दुनिया बनी और खुदा और उसके लोग नजर आने लगे। दूसरा है खरूज, जब इसराइल वजूद में आया। पहला दुनिया वजूद में आया, दूसरा इसराइल वजूद में आया, और तीसरा है दाऊद की बादशाहत, जब दाऊद की बादशाहत वजूद में आई। ये 3 चीज़ें हैं, और इन 3 चीज़ों में अबाई कलीसिया हमें बताते हैं कि मसीह का किरदार हमें नजर आता है इन तीनों बातों में, मसीह का किरदार। क्योंकि पुराने अहदनामे में तख्लीक में आदम ने गुनाह किया, नई तख्लीक में खुदा यीशु मसीह ने नया आदम बनकर दुनिया को निजात बख्शी। पुराने खरूज में मूसा बनी इसराइल को गुलामी से आज़ादी की तरफ लेकर जाता है। नए खरूज में खुदा यीशु मसीह, जो कि नया मूसा है, अपने मौत और जी उठने से पूरी दुनिया को गुनाह की गुलामी से लेकर निजात की आज़ादी में लेकर जाता है। गुनाहों की माफ़ी हमें दिलाता है
बाप के पास हमें लेकर जाता है। और जिस तरह दाऊद की बादशाहत में उसका बेटा सुलेमान जो था उसने अमन कायम किया, उसी तरह खुदा यीशु मसीह जो दाऊद की नस्ल से है उसने दाऊद की बादशाहत को वापस कायम किया और अपने मरने और जी उठने से खुदा और इंसान के दरमियान अमन कायम किया, सलामती कायम की। इसीलिए जब वो पैदा हुआ तब फरिश्तों ने क्या गीत गाया? आलमे बाला पर खुदा को जलाल और जमीन पर नेक नियत आदमियों के लिए सलामती। और इसी वास्ते जब खुदा यीशु मसीह जी उठा और अपने शागिर्दों को दिखाई दिया तो सबसे पहला जुमला उसका क्या था? तुम पर सलामती हो। उसने सलामती को कायम किया। अब अजीज भाई और बहनों, इन तीन बातों में, तख्लीक में, खरूज में और बादशाहत में दाऊद की, जिस तरह खुदा यीशु मसीह की परछाई हमें नजर आती है, उसी तरह अबाए कलीसिया मुकद्दसीन हमें बताते हैं कि इन तीनों बातों में, इन तीनों पहलुओं में हमें मुकद्दसा मरियम भी नजर आती है। तीनों में कैसे? कब जिस तरह देखते हैं। और इन तीनों बातों में हमें तीन बातों का पता चलेगा, तीन चीजें हमारे सामने आएंगी जो मुकद्दसा मरियम के हवाले से हैं। एक कि मुकद्दसा मरियम बेदाग पैदा हुई है। दूसरा कि मुकद्दसा मरियम जिस्मानी तौर पर आसमान पर उठाई गई है। और तीसरा यह है कि मुकद्दसा मरियम कुल जहां की मलिका है। ये तीनों बातें इन तीनों बातों से निकलेंगी और बाइबल के हवालों के साथ निकलेंगी। अजीज भाई और बहनों, चलते हैं पहली बात की तरफ कि मुकद्दसा मरियम बेदाग पैदा हुई है और तख्लीक में हमें नजर आती है। कहां और कैसे? गौर फरमाइए। ये कुछ तकनीकी बातें हैं, कुछ टेक्निकल बातें हैं, इसलिए आपको गौर से सुनना पड़ेगा। एक भी नुक्ता आपने छोड़ दिया तो आप सारी चीजें समझ नहीं पाएंगे, इसलिए गौर से सुनिएगा। जब हम तकवीन की किताब पढ़ते हैं, खास तौर पर उसका पहला और दूसरा बाब, तो वहां हमें मिलता है कि खुदा ने पहले दिन ये कायम किया, फिर अगला दिन, फिर अगला दिन, फिर अगला दिन। जब आया छठा दिन तब उसने आदम और हवा को पैदा किया, अपने हाथों से मट्टी लेकर उनको बनाया। और सातवें दिन उसने क्या किया? आराम किया। क्या किया उसने? आराम किया। अब मुकद्दस अगस्टिन हमें बताते हैं, मुकद्दस अगस्टिन बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत बड़े मुकद्दस हैं, बिशप थे। वो हमें बताते हैं कि दर हकीकत जब उसने तहरीर की तो उसने लिखा कि आदम और हवा छठे दिन बनाए गए और सातवें दिन दर हकीकत उनका ब्याह हुआ, क्योंकि खुदा ने उनको मिलाया और खुदा ने कहा तुम नर और नारी हो, तुम एक हो, आज से तुम दो तन नहीं बल्कि एक तन हो। तो हकीकतन सातवें दिन उनका निकाह हुआ, ये हमें पता चलता है। और इन दोनों अबवाब में, पहले बाब और दूसरे बाब में, हमें सिर्फ दो किरदार मिलते हैं, आदम और हवा और खुदा, बस ये हमें मिलते हैं और इसके अलावा कोई नाम नहीं है। और जब आदम के सामने हवा को लाया गया तो आदम ने देखते ही उसे क्या कहा कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से ये क्या कहलाएगी? औरत। क्या कहलाएगी? औरत। जो असल जो उसकी ट्रांसलेशन है, जो तर्जुमा है, वो ये है कि ये औरत कहलाएगी, क्योंकि ये पूरी कायनात की क्या है? माँ है। क्या है? माँ है। अब अजीज भाइयों और बहनों, ये दो बाब आपने याद रखने हैं, बहुत दफा हमने सुने हैं। अब इसी की रोशनी में हमने यूहन्ना की अंजील के पहले दो बाब का तज्जिया करना है और देखना है कि उसमें, इस रोशनी में हमें क्या मिलता है। तो जब हम यूहन्ना की अंजील पढ़ते हैं तो शुरू होती है यूहन्ना की अंजील इस तरह से कि इब्तिदा में क्या था? कलमा था। इब्तिदा में कलमा था। अब इब्तिदा का मतलब है कि यह है पहला दिन। उसके बाद जब हम 29वीं आयत पढ़ेंगे तो उधर लिखा है अगला दिन। 35वीं आयत पढ़ेंगे तो उधर भी लिखा है अगला दिन। और 43वीं आयत पढ़ेंगे तो उधर भी लिखा है अगला दिन। यूहन्ना अपनी अंजील इस तरह लिख रहा है, इस बात में लिखता है इब्तिदा अगला दिन, अगले दिन ये हुआ, अगले दिन ये हुआ और अगले दिन ये हुआ। तो इब्तिदा के साथ 3 और दिन मिलाएं तो कितने दिन बनते हैं? 4 दिन। कितने दिन बनते हैं? ये इलामती तौर पर हमें दिखाए गए हैं, इशारतन दिखाए गए हैं, ठीक है, 4 दिन बनते हैं। अब आते हैं यूहन्ना के दूसरे बाब में।
اور وہ باب شروع ہوتا ہے اس طرح. اور تیسرے دن کانائے جلیل میں کیا ہوا؟ بیاہ ہوا. تیسرے دن کانائے جلیل میں کیا ہوا؟ بیاہ ہوا. اب 3 دن گزر چکے ہیں. جب ہم 4 کو 3 سے ملاتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ 7. کیا ملتا ہے؟ اور 7ویں دن کانائے جلیل میں کیا ہو رہا ہے؟ بیاہ ہو رہا ہے. کس کا ہو رہا ہے؟ ہمیں نہیں پتا، لیکن وہاں کردار کون موجود ہے؟ خداوند یسوع مسیح، جو کہ خدا بھی ہے اور مکمل طور پر انسان بھی ہے. اور اس کے علاوہ کون موجود ہے؟ مقدسہ ماں مریم. مقدسہ ماں مریم. تکوین میں ابتدا میں خدا کی روح پانیوں پر کیا کرتی تھی؟ اور اب خدا جب معجزہ کرتا ہے تو کس کا کرتا ہے؟ پانی کا کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، گڈ. اب جب خداوند یسوع مسیح کے پاس اس کی ماں آتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کے پاس میں نہیں، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خداوند نے اس کو ماں نہیں کہا، بلکہ اس کو کیا کہا؟ اے عورت. پرانے عہد نامے میں آدم کیا کہہ رہا ہے؟ عورت. خدا جو کہ نیا آدم ہے اپنی ماں کو کیا کہہ رہا ہے؟ عورت. عبرانی میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے عورت کے لیے پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں، وہ عبرانی میں اسے ہم کہتے ہیں گونائی. گونائی جس کا مطلب ہے عورت. وہی لفظ دونوں جگہ پر استعمال کیا گیا ہے. اور یہ اشارتاً، علامتاً ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہی عورت ہے جس نے دنیا میں آنا تھا اور شیطان کے سر کو کیا کرنا تھا؟ مسلنا تھا، کچلنا تھا. عزیز بھائی اور بہنوں، جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ٹھہرا کہ مقدسہ مریم کی پرچھائی ہمیں نظر آ رہی ہے پرانے عہد نامے میں، اور اب نئے عہد نامے میں وہ آ چکی ہے. پرانا آدم بھی ہے، نیا آدم بھی ہے. پرانی ہوا بھی ہے، نئی ہوا بھی ہے. اب خداوند یسوع مسیح خدا ہے، وہ بے گناہ ہے، اس پہ موروثی گناہ کوئی نہیں. یہ ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں اور ہمیں پتا بھی ہے. لیکن جب خداوند نے آدم اور ہوا کو بنایا تو کیا وہ گنہگار تھے؟ نہیں. وہ موروثی گناہ سے کیا تھے؟ پاک تھے. جب وہ بنائے گئے تو وہ موروثی گناہ سے پاک تھے. کیونکہ پہلا آدم موروثی گناہ سے پاک تھا، اس لیے نئے آدم کا موروثی گناہ سے پاک ہونا کیا تھا؟ ضروری تھا. کیونکہ پرانی ہوا موروثی گناہ سے پاک تھی، اس لیے نئی ہوا کا موروثی گناہ سے پاک ہونا کیا تھا؟ ضروری تھا، لازم تھا، ورنہ مکمل نہ ہوتا. لیکن وہ دونوں گناہ میں گرے پرانے، لیکن نئے والے جو ہیں وہ کامل رہے اور انہوں نے خدا کی بادشاہت کا پرچار بھی کیا اور اس کو قائم بھی کیا. اب عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہوا کیسے بنائی گئی؟ کس کے وسیلے سے وجود میں آئی؟ آدم کے وسیلے سے. لیکن آدم اس کو خود پیدا نہیں کر سکتا تھا، تو اس لیے خدا نے مداخلت کی اور آدم کے وجود میں سے، کس کے وجود میں سے؟ آدم کے وجود میں سے ہوا کو نکالا. لیکن اب جو نیا آدم ہے وہ کون ہے؟ وہ خود خدا ہے. خود کیا ہے؟ سب مل کر بولے، کیا ہے؟ خود خدا ہے. اور اب خدا کی آدم کے وجود میں سے نئی ہوا کو کیا کیا جا رہا ہے؟ نکالا جا رہا ہے، کیونکہ اس نے خود خلق کیا اسے. اسی لیے جو خدا سے نکلا ہے، کیا وہ گنہگار ہے یا پاک ہے؟ پاک ہے. اس لیے مقدسہ مریم جو ہے وہ بے داغ ہے، وہ بے گناہ ہے، اور اس کی روح میں موروثی گناہ کوئی نہیں، کوئی نہیں موروثی گناہ. اس واسطے بائبل ہمیں سکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ مقدسہ مریم بے داغ ہے، بے داغ ہے، اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اب عزیز بھائیوں اور بہنوں، چلتے ہیں خروج کی طرف. اب خروج میں ان کے پاس ہیکل نہیں تھی، لیکن خدا نے ان کو حکم دیا کہ تم عہد کا صندوق بناؤ جو عقیقہ کی لکڑی سے بنے گا، اور اس کے اوپر تم سونا اس پر لادو گے، اور اس میں 3 چیزیں ہوں گی. عبرانیوں کے نام خط 9 باب اور 4 آیت کے مطابق اس میں 3 چیزیں ہوں گی. اس میں من ہوگا جو آسمانی روٹی ہے،
हारून का आसा होगा जो कहानत की अलामत है, और उसमें तख्तियां होंगी जो शरीयत है, ये उसमें होगा। अब हमें कैसे पता चलता है कि अहद के संदूक में खुदा की मौजूदगी है? खरूज उसका 40वां बाब और उसकी 34वीं आयत हमें बताती है कि हक ताला की कुदरत ने अहद के संदूक पर क्या किया? साया डाला, और सब लोग घुटने होकर, जमीन के बल दोजानो होकर उसको सजदा करने लगे, क्योंकि उस पर कौन उतरा था? खुदा उतरा था, इसलिए उन्होंने गिरकर उसे सजदा किया। अब अजीज भाइयों और बहनों, मुकद्दसा मरियम जो है उन नए अहदनामे के अहद का संदूक है, क्योंकि इसके पेट में कौन पल रहा है? खुदावंद यीशु मसीह। और लूका की अंजील उसका पहला बाब और 35वीं आयत के मुताबिक जब मुकद्दसा मरियम ने पूछा कि ये कैसे होगा, क्योंकि मैं किसी मर्द से ना वाकिफ, तो जिब्राइल फरिश्ते ने क्या कहा कि हक ताला की कुदरत तुझ पर, सिर्फ 2 चीजों पर हक ताला की कुदरत ने साया डाला, पुराने अहदनामे में अहद के संदूक पर और नए अहदनामे में मुकद्दसा मरियम पर। इसके अलावा और कहीं नहीं साया डाला हक ताला की कुदरत ने। ये 2 जगह हैं। और हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पर इस तरह होता है? क्योंकि जब पुराने अहदनामे में हम पढ़ते हैं 2 सैमुएल का 6वां बाब और लूका की अंजील का पहला बाब, तो उसमें मुआजना जो हमें मिलता है वो अहद के संदूक का मिलता है। अब घर जाकर पढ़ना इसके 2 सैमुएल उसका 6वां बाब और लूका की अंजील उसका पहला बाब। जब मुकद्दसा मरियम हामला होती है तो वो इलिसबात से मिलने जाती है। इलिसबात कहाँ रहती है? यहूदिया की सरजमीन में। और वहां कितने महीने उसके साथ रहती है? कितने महीने? 3 महीने। अब 2 सैमुएल के 6 बाब में फलस्तीन के पास था, फलस्तीनियों के पास था अहद का संदूक। दाऊद उसे ढूंढकर लेकर आता है, और जब वो लेकर आ रहा होता है तो रास्ते में हादसा हो जाता है। वो बाद में पढ़ लेना। अब जब हादसे के बाद दाऊद डर जाता है कि मैं इस संदूक को, अहद के संदूक को अपने घर नहीं ला सकता, तो दाऊद ये अल्फाज कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि मेरा खुदा मेरे घर में आए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और जब इलिसबात के पास मुकद्दसा मरियम जाती है तो इलिसबात क्या कहती है कि ये कैसे हुआ कि मेरे खुदा की माँ मेरे घर में आई? और दाऊद डर जाता है, और डर के मारे यहूदिया की सरजमीन में, लिखा है बाइबल में, यहूदिया की सरजमीन में वहां पर उबैद अदूम नामी एक इंसान के, एक बंदे के घर में वो अहद के संदूक को ठहरा देता है, और लिखा है वहां पर 3 महीने तक। कितने महीने तक? 3 महीने तक। मुकद्दसा मरियम कितने अरसे ठहरी? 3 महीने। और कहाँ ठहरी? यहूदिया की सरजमीन में। अब जब दाऊद ने सुना कि 3 महीने में उसको बरकतें मिली हैं, तो दाऊद वापस अहद का संदूक लेने जाता है और यरूशलेम की तरफ लेकर आता है। जब वो लेकर आ रहा होता है तो वो रास्ते में उछल उछल कर रक्स करता है, नाचता है, डांस करता है। जब मुकद्दसा मरियम इलिसबात को सलाम करती है तो इलिसबात क्या कहती है कि जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कानों में पहुंची तो खुशी से बच्चा जो है मेरे बतन में क्या हुआ? हम उछलते कब हैं? जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, नाचते हैं, डांस करते हैं। तो जिस तरह दाऊद खुदावंद की हजूरी में रक्स करता है, उसी तरह यूहन्ना जो अभी माँ के बतन में है खुदावंद की मौजूदगी में रक्स करता है। अजीज भाइयों और बहनों, जब इलिसबात मुकद्दसा मरियम को देखती है तो वो कहती है कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे पेट का फल क्या है? मुबारक है। जब दाऊद अहद के संदूक को देखता है तो वो भी उसके लिए बरकत चाहता है और अपने लिए बरकत मांगता है। और अजीज भाइयों और बहनों, याद रहे अदद की किताब उसका 4वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है कि अहद का संदूक जब जब खेमा बदलता था या रास्ते में था या सफर में था तो उस पर एक नीली चादर लपेटते थे। कौन सी चादर लपेटते थे? नीली चादर। इसलिए लश्कर मरियम के जो दुपट्टे हैं वो नीले रंग के हैं। और आप जितने भी तस्वीरें देख ले मुकद्दसा मरियम की, ज्यादातर आपको मुकद्दसा मरियम का जो दुपट्टा है, जो चादर है, कौन से रंग की मिलेगी? क्योंकि अहद का संदूक जब जब सफर में होता है तो कौन सी चादर में होना चाहिए? नीली चादर में। ये बाइबल में लिखा है, ये मेरी बातें नहीं है, ये सारी बातें बाइबल में लिखी हैं अजीज भाइयों और बहनों। इसीलिए मुकद्दसा मरियम जो है वो नए अहदनामे का अहद का संदूक है। अब ये अहद का संदूक कहाँ गया हमें नहीं पता, ये गायब हो गया। 587 में
जबलून ने इसराइल पर हमला किया। इससे पहले कि वो हैकल पहुंचते, इर्मिया ने खुदा से रोया में ये मैसेज पाया, ये पैगाम पाया कि अहद के संदूक को उठा और पहाड़ पर जाकर एक गार में गुफा में उसे छुपा दे। ये हवाला हमें मिलता है दूसरा मकाबीन उसका दूसरा बाब 4 से 8 आयत। दूसरा मकाबीन उसका दूसरा बाब 4 से 8 आयत। ये उसने छुपा दिया। काहिन उसके साथ थे और वो उससे पूछते हैं कि तूने कहाँ छुपाया, हमें बता ताकि हम इसको बाद में लेने आए। उन्होंने बहुत ढूंढा उसको बाद में, लेकिन अहद का संदूक नहीं मिला। जब उन्होंने इर्मिया से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो इर्मिया ने कहा अहद का संदूक अब उस वक्त नजर आएगा जब खुदा की रहमत इस दुनिया पर उतरेगी। और खुदा की रहमत इस दुनिया पर कब उतरी? जब खुदा यीशु मसीह दुनिया में पैदा हुआ, आया। अब अजीज भाई और बहनों, अहद का संदूक धरती पर कहाँ है किसी को नहीं पता। मुकद्दसा मरियम की कब्र कहाँ है किसी को नहीं पता। लेकिन यूहन्ना आरिफ हमें बताता है, मुकाशवा की किताब जो हमने आज दूसरी तिलावत सुनी, उसके 11वां बाब की 19वीं आयत में हमें बताता है कि मैंने आसमान में देखा हैकल, और हैकल का दरवाजा खुलता है और वहां पर मुझे क्या नजर आता है? अहद का संदूक। यानी अहद का संदूक कहाँ है? आसमान में, आसमान में। और उसी के फौरन 12वां बाब शुरू होता है और वहां लिखा और मैंने देखा आसमान में एक औरत लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? मुकद्दसा मां मरियम के लिए, जिसके सर पर 12 सितारों का, उसने जिसने सूरज को, और चांद जिसके पांव की चौकी है। और मुकद्दसा मरियम कहाँ है? आसमान में। पुराने अहद का संदूक कहाँ है? आसमान में। नए अहदनामे का संदूक कहाँ है? आसमान में। अब आखिरी बात जो इस बात को भी मुकम्मल करेगी कि मुकद्दसा मरियम 2 जहानों की मलका है, आसमान और जमीन की, कुल कायनात की वो भी मलका है। हमें कैसे पता चलता है? खुदावंद यीशु मसीह किसकी नस्ल से है? दाऊद की। किसकी नस्ल से है? दाऊद की नस्ल से। और अगर वो दाऊद की नस्ल से है तो वो खुद को क्या हुआ? बादशाह की नस्ल से है ना, तो क्या हुआ? वो बादशाह हुआ। और वो बादशाह अपनी खलकत को, अपनी हुकूमत को क्या करने आया था? कायम करने आया था। दाऊद के बेटे का नाम क्या है? सुलेमान। जब दाऊद अपने मौत के करीब था तो उसने चाहा कि उसका बेटा सुलेमान बादशाह बने। और हमें मिलता है पहला मलूक उसका दूसरा बाब, वहां पर हमें नजर आता है कि सुलेमान को बादशाह मसा किया गया, उसे बादशाह बना दिया। जब हम 15वीं से 18वीं आयत पढ़ते हैं पहले मलूक की दूसरे बाब की, तो हमें नजर आता है कि सुलेमान अपना ताज पहने हुए अपने जलाली तख्त पर बैठा है और उसके हाथ में असा है। और सारे लोग जो हैं उसके सामने दोजाने हुए हुए, मुंह के बल जमीन पर गिरे हुए हैं। इतने में उसकी माँ आती है जिसका नाम है बादशीबा। वो जब अपनी माँ को देखता है तो वो अपने तख्त से खड़ा हो जाता है ताज़ीम में। और इससे पहले कि उसकी माँ उसके पाँव में गिरती सजदे में, सुलेमान अपने माँ के पाँव में सजदे में गिर जाता है। और जब वो सजदे में से उठ खड़ा होता है तब वो अपने गुलामों को हुक्म देता है कि एक तख्त लेकर आओ और मेरे दाहिने हाथ पर रखो। कौन से हाथ पे? दाहिने हाथ पे, क्योंकि मेरी माँ अब मेरे साथ बैठेगी और ये मेरी मलका कहलाएगी। तो बनी इसराइल की बादशाहत में या दाऊद की बादशाहत में जो हकीकत है, जो रूल है, वो ये है कि बादशाह की बीवी जो है वो कभी मलका नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बादशाह की कितनी सारी बीवियां थी। सुलेमान की तो 900 से ज्यादा लौंडियां थी, तो किसको वो मलका मुकर्रर करता है? इसलिए बनी इसराइल के जितने बादशाह थे उनकी बीवियां मलका नहीं थी। कौन मलका थी? बादशाह की माँ। तो अगर खुदा यीशु मसीह बादशाह है और हम नवंबर में मनाएंगे कि खुदा यीशु मसीह से कुल कायनात का क्या है? बादशाह है। और अगर हमारा खुदा यीशु मसीह बादशाह है तो उसकी माँ फिर कौन हुई? इतनी सी बात थी, इतनी मुश्किल बात भी नहीं थी। अजीज भाई और बहनों, ये देखिए, ये कलाम की बातें हैं, ये मेरी ज़ाती बातें नहीं। ये हमारे आबाई कलीसिया ने ये कलाम से ये बातें निकाली हैं और हम तक पहुंचाई हैं।
सिर्फ हमें थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है और ईमान लाने की ज़रूरत है। यकीनन मुक़द्दसा मरियम बेदाग पैदा हुई है, यकीनन वो अहद का संदूक है जो खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया में लेकर आई, उसने उसकी हजूरी हमें दिखाई और मुक़द्दसा मरियम आज आसमान में उसके दाहिने हाथ पर बैठी है, राज करती है, मलिका है, हमारे लिए सिफारिशें करती है और करती रहेगी जब तक हम उसके बेटे के पास तक न पहुंच जाएं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, जो उसकी कुदरत से पेट में पड़ा और मरियम से पैदा हुआ, उसने 35 पिलातुस के हाथ में उठाया है, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया। आमीन। आए हम अपने कलीसिया दुआएं खुदा के ज़रूर पेश करें। बिशप साहिबान, काहिनों की कुल जमात, सिस्टर साहिबान और मुबशराने अंजील के लिए दुआ करें जो खुदा के चुने हुए खास लोग हैं कि वो अपने कोलोफेल से लोगों की रहनुमाई कर सकें। अजीज़ों मिलकर दुआ करें। पाकिस्तान की तमाम डायसिस के तमाम मोमिनीन को खुदा अपने ढेरों बरकत से नवाजे ताकि नेकी और अच्छाई के कामों में आगे बढ़ते जाएं। अजीज़ों मिलकर दुआ करें। हम दुआ करें जिस तरह मुक़द्दसा मरियम खुदा के घर में और हमेशा की ज़िंदगी की खुराक के लिए भूखी और प्यासी थी, हम भी उसके कलाम के लिए तड़पें और जस्तजू करें। अजीज़ों मिलकर दुआ करें। दुआ करें उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी के बेशुमार मुश्किलात में घबरा कर नाउम्मीद और मायूस हो चुके हैं कि मुक़द्दसा माँ से तसल्ली पाएँ और एक नए अज़म के साथ ज़िंदगी बसर करें। अजीज़ों मिलकर दुआ करें। और अपने ख़ानदानों के लिए भी दुआ करें कि खुदा बाप उनके दरमियान ख़ानदानी रंजिशों और इख्तलाफात को ख़त्म करे और ख़ानदानों को अमन व सलामती का गहवारा बनाए। अजीज़ों मिलकर दुआ करें। दुआ करें उन लोगों के लिए जो घरों अस्पतालों में बीमार हैं या हमारी इस जमात में मौजूद है और ख़ास तौर पर कोरोना वायरस की वजह से बीमार है, कि मुक़द्दसा मरियम अपने बेटे से इनकी शिफा के लिए सिफारिश करे कि ये सब सेहत और तंदुरुस्ती हासिल करें। अजीज़ों मिलकर दुआ करें। तमाम मरहूमीन के लिए दुआ करें जो खुदावन में सो चुके हैं कि खुदावन इन सब को हमेशा का आराम और हमेशा की ज़िंदगी अता करे और सोगवार ख़ानदान को तसल्ली अता करे। अजीज़ों मिलकर दुआ करें। खुदा की हजूरी में मकबूल हो। खुदा इस कुर्बानी को हम दुआ मांगे। ये वाक़या वहाँ
اے خدا ہمارے خدا بخش دے کہ یہ نذرانہ صلیب قربان گاہ پر ساری دنیا کی خطا اٹھا کر ہمیں بھی ساری خطاؤں سے پاک کرے. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. ہم خداوند کی طرف دھیان لگائیں. ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں. واقع واجب و نہایت مناسب ہے کہ اس باپ کے ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں. تو نے صلیب کی لکڑی کو انسان کی نجات کا ذریعہ ٹھہرایا تاکہ جہاں سے موت کی ابتدا ہے وہاں سے زندگی دوبارہ حاصل. اور جو درخت کے ذریعے غالب ہے وہ درخت کے ذریعے مغلوب. مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے جس کی معرفت فرشتوں اور تمام بچوں کے ساتھ ہم یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں. یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا. آپ نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر کہ اللہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور نئے اور اپنی عہد نہیں میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا. میری یاد میں یہی کیا کرو. ہمارے ایمان کا بھی بس اب آپ ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں. زندگی ہم آرزی کے ساتھ التجا کرتے بخشتے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کے روح القدس کی اطاعت سے تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اسے کامل محبت عطا فرما. ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں. نیز تمام محروموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما. ہم تجھ سے منت کرتے ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں قماری مریم اس کے نہایت پاک شوہر مقدس یوسف مبارک رسولوں ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہان میں تیری مرضی پوری کرتے رہے ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہو اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکے. اپنا لے یا کہہ دے اس سے پیار نہیں جو کچھ لگایا تیری خاطر کیا وہ بھی تیرا دلدار نہیں. یا یسوع کو اپنا لے یا کہہ دے اس سے پیار نہیں جو کچھ لگایا تیری خاطر کیا وہ بھی تیرا دلدار نہیں. یا یسوع کو اپنا لے یاد ذرا وہ سما یسوع گرتا یہاں وہاں You are watching Shaggy TV. Stay tuned and keep watching